dear students, how are you? Hope you all are fine. Today my topic is center tendency. You had seen my previous videos. I had already explained what is individual series, discrete series and continuous series. And center tendency means average. In your syllabus, there are three methods, that is mean, median and mode, for calculating the center tendency, or we can say that the average. In this video, uh, we I have explained median. Median means the middle value is called median. For this we have to use three series: individual series, discrete series and continuous series. Individual series. Under individual series, we have to arrange the series in ascending or descending order. Two things must be in your mind. पहली क्या होनी चाहिए कि जो भी सीरीज हो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी आपको अच्छा लगता है, यू कैन अरेंज. सेकेंड पॉइंट इज मिडल वैल्यू इज मीडियन. मिडल वैल्यू का ही आंसर आएगा हमेशा. मीडियन वैल्यू कौन सी होगी? जो एक्स में होगी. ओके, लेट अस सी. This is the series x, that these are the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. There are 7 numbers. First of all, according to assumption, the series must be arranged in ascending or descending order. So, we have to arrange this series into ascending or descending order. The middle value is called median. Is that right? Hence we can say that our answer is 27. Okay, now we see the another example of individual series where there are 8 numbers. 4, 5, 6, 7 and 8 numbers. So according to assumption, series must be arranged in ascending or descending order. So हमने इसे ascending order में कर दिया. अब according to second assumption, middle value is median. यहाँ तो middle value 4th आ रही थी 7 numbers में, 3 in the left side or 3 values are in the right side. The middle value is 27, hence our median is 27. This is the 4th number. Then 7 plus 1 by 2, अब आ गया ना 4th नंबर. तो 4th नंबर क्या है? 27. 7 क्या है? टोटल हमारा n है, n plus 1 by 2, that is 7 plus 8 by 2. It is the 4th value. 4th value क्या है? 27. इसी तरीके से ये हो जाएगा. 8 है टोटल. 8 plus 1 by 2, that is 4.5. ठीक है, 4.5. और देखा भी जाए तो these are इवन नंबर्स. तो 1 यहाँ छोड़ा, एक यहाँ छोड़ा, यहाँ 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 फिर यहाँ. तो ये दो वैल्यूज जो हैं 4th और 5th क्या है? मिडल नंबर हैं. तो 4th और 5th का हम फॉर्मूला लगा देते हैं. दोनों का मिडल नंबर ले लेते हैं. 4th वैल्यू प्लस 5th वैल्यू, इनका मिडल डिवाइडेड बाय 2. तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी. दिस इज 59 बाय 2. तो 59 बाय 2 हमारी क्या आ जाएगी? मिडल वैल्यू. तो मीडियन क्या हो गया हमारा? 2 2 जार 4 और फिर 9 से किया, 2 9 जार 18 और 29.5. दिस इज आर मीडियन. तो रादर चाहे ओड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, आपका फॉर्मूला वही लगा. द मिडल वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. फॉर्मूला वही. क्या फार्मूला है? n plus 1 by 2. This is the formula of individual series. Now we will do the discrete series. I had already explained small f is much better than capital F. I had already explained how can we bifurcate this individual series, discrete series and continuous series. Discrete series have its frequency always and it is in the jumping number. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हो तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है. क्लियर? अब
चलते हैं, x एंड f आर गिवन, तो हमें इसके लिए CF कैलकुलेट करना है। इसके लिए भी हम कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के लिए एक ही अजम्पशन है, वो अजम्पशन क्या है कि cumulative frequency must be there just to do the calculation easier, nothing else. It's very easy where the value is hidden or where the value we can find. So हमने इसको टोटल जब किया 3, 2, 4, 6 and 5, इसका टोटल भी क्या आ गया 20. Formula again n plus 1 by 2. तो what is n? n is 20. One and the same thing, दोनों बराबर ही आएंगे. The last number of the cumulative is always equal to the number of frequencies. Clear? So n plus 1 by 2, 21 by 2, 21 by 2 means 10.5. 10.5 item is more than 3, so it is not lied here. 10.5 is more than 5, not lies here. 10.5 9 से बड़ा है, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो 10.5 lies here. और इसकी वैल्यू कहाँ देखी जाती है? हमेशा x में. Hence our answer is 5. जल्दी से फिर कैप्चर कर ले. ये दोनों आपको दिए होंगे x एंड f. CF आपने अपने लिए बनाना है. रादर आपका आंसर इससे भी निकल आएगा. कैसे? n plus 1 by 2, n is 20. 20 से भी निकल आएगा. 20 plus 1 by 2, 10.5. फिर आप धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे. 5, 9, 16 यहाँ लाई करेगा. बेटर है कि ये CF आप अपने लिए निकाल लें. तो जिस तरह से इंडिविजुअल सीरीज में आपने दो बातें की, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर दें और मिडल वैल्यू ही आंसर आएगी, इसी तरह से आप डिस्क्रीट में भी कर लेंगे कि CF फाइंड आउट करेंगे. एक ही आप चीज दिमाग में सोचेंगे, CF फाइंड आउट करेंगे और CF से आपका इजी हो जाएगा. कमन. अब चलते हैं कंटिन्यूस सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज मीन्स द सीरीज लाइव इन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. दिस इज गिवन एंड दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर और वी कैन सेट इन योर बुक्स. सो वही इसके लिए भी एक चीज जरूरी है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? CF फाइंड आउट करना है. तो CF हमने बना लिया. फर्स्ट इज 5, देन वी हैव टू ऐड नेक्स्ट नंबर 7, तो 12 हो गया. फिर हमने नेक्स्ट ऐड किया तो 15 हो गया. 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 4 25. मीडियन का फार्मूला क्या है? m, मीडियन को स्मॉल m से डिनोट कर दिया. L1 प्लस n बाय 2 माइनस फ्रीक्वेंसी ओवर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल. आप चाहे C लगाएं, चाहे I लगाएं या H लगाएं, इट इज टोटली अप टू यू. तो मीडियन क्या है? n बाय 2, दैट इज 20. ये है ना नंबर ऑफ, और यहाँ 25 निकाल, तब भी टोटल करेंगे 25 ही आएगा. 25 बाय 2 12.5. अगेन 12.5 कहाँ लाई करेगा? 12.5 इज बिगर देन 5, यहाँ लाई नहीं कर सकता. 12.5 12 से भी बड़ा है, यहाँ लाई नहीं कर सकता. तो कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा. जहाँ लाई करता है उसके सामने वाली क्या होती है? वैल्यू होती है. अब यहाँ हमारी वैल्यू इज नॉट अ पर्टिकुलर नंबर, एक कंटिन्यूटी में नंबर है. तो यानी जो हमारा आंसर है देखते ही पता चलेगा 20 और 30 के बीच में आना चाहिए. अगर नहीं आया तो हमने कैलकुलेशन गलत किया. तो यहाँ 12.5 कहाँ लाई किया? 15 में. 12 में तो लाई कर ही नहीं सकता था. 15 में इसके सामने वाली हो जाती है फ्रीक्वेंसी, ये हो जाती है हमारी वैल्यू. पर वैल्यू एक पर्टिकुलर निकालनी पड़ेगी. किससे बनकर बना 12.5? 12 से. तो 12 क्या हो गया हमारा? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो हमारे को कितनी चीजें चाहिए? L1. इसमें लोअर लिमिट क्या है? 20. अगेन क्या चाहिए? n by 2, वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड 12. माइनस क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी. क्लियर? बड़ा F का मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो मैंने -12 कर दिया, डिवाइडेड बाय 3. 3 क्या है हमारी? फ्रीक्वेंसी. मल्टीप्लाई क्या है? क्लास इंटरवल. तो 10 का इंटरवल है. क्लियर? 0.5 बाय 3 इंटू 10. तो 20 प्लस बड़ी ब्रैकेट है बेटा, ध्यान रखना. 20 बाहर है, बड़ी ब्रैकेट थी. 12.5 माइनस 12 क्या हुआ? 0.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10. तो 0.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? 5/3. तो 5/3 क्या होता है? 1.6. तो ये टोटल हो गया 21.3. देखिए हमारा आंसर लाई किया 20 और 30 के बीच में. क्लियर? अब एक न्यूमेरिकल दूं आपको और मैं चाहूंगी कि आप उसका रिप्लाई मुझे दें. ओके ओके. सीरीज इज सेम बट मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही हूँ. दैट इज 3, 4, 9, 2, 6.
0 to 10 की फ्रीक्वेंसी है 3, 10 to 24, 20 to 39, 30 to 46, सॉरी 2, और 40 to 50 है 6। तो मैं चाहूंगी कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखें। थैंक यू बेटा, होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लें, सेंटर टेंडेंसी का सेकंड मेजरमेंट जो आपके सिलेबस में है वो है मीडियन, और मीडियन इज सो कॉल्ड मिडल वैल्यू, एंड इन आवर सिलेबस वी हैव टू calculate median into 3 series, individual, discrete and continuous। individual series के अंदर आपको सीरीज अरेंज करनी है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमेशा मिडल वैल्यू ही आंसर आएगा। तो चाहे इवन नंबर है या ओड नंबर है, आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगा, n/2। हेयर n कितने थे, नंबर कितने थे, 7, सो 7 + 1/2 यही फॉर्मूला लगेगा। आई रिपीट अगेन एंड अगेन। तो 7 + 1/2 किया, दैट इज 8/2। 8/2 का मतलब फोर्थ नंबर, जब आपने इसको सीरियल नंबर लिखे 1 2 3 4, तो फोर्थ नंबर क्या था, 27। नेक्स्ट मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में एग्जांपल दिया 8 वैल्यूज का। तो 8 + 1/2 दैट इज 9/2। तो 9/2 का मतलब 4.5। 4.5 का मतलब फोर्थ और फिफ्थ का आधा। तो फोर्थ नंबर इज 27, देन इज 32 डिवाइडेड बाय 2, 59/2। नाउ डिस्क्रीट सीरीज, सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई किया। एक ही बात आपको असम्पशन में मानी है कि आपको क्या लेनी है, CF। CF लिया तो दैट इज n + 1/2। क्लियर। 10.5 10.5 लाइक किया 15 में। दीज नंबर आर स्मॉलर देन 10.5। तो 10.5 से 3 भी छोटा है, 5 भी, 9 भी, तो कहाँ लाइक किया, 15 में। तो इसके सामने वाला क्या आ जाएगा, आपका आंसर। कंटिन्यूस सीरीज भी सेम है, आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। हमारा यहाँ है 12.5, यहाँ भी लाई नहीं किया, यहाँ भी लाई नहीं किया, कहाँ लाई किया, 15 में। उसके सामने वाला आंसर है, बट कंटिन्यूस सीरीज में है और हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू लेनी होती है। सो वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला, L1 + n/2 - CF मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल। तो आपको सारी वैल्यूज डाल देनी और आपका आंसर 100% 20 to 30 में लाइक करना चाहिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।